السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجتماع میں ہوں علی سرور۔ آج کا پروگرام کا آغاز کریں گے انٹرنیشنل خبر سے اور بات کریں گے سپر پاور امریکہ اور اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا حماس جنگ بندی نہیں چاہتی، ان کے لیڈروں کا شکار کر کے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کی انہوں نے دھمکی دی ہے، اور اس دھمکی کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب صاف الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس جنگ بندی نہیں چاہتی تو ان کے لیڈروں کا شکار کر کے نجات حاصل کرنا ہوگی، شکار کر کے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے امریکہ کی، کیونکہ بات کا آغاز کیا تو امریکہ میں ہی خان صاحب کے بچوں کی بھی بڑی اہم ملاقاتیں، کچھ چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں تصاویر کے ذریعے، اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ پس پردہ ملاقاتیں ہیں جن کی تصاویر کسی ٹویٹر ہینڈل جو ہے شیئر نہیں کی جا رہی، لیکن ملاقاتیں بدستور وہاں جاری ہیں۔ اچھا، ان ملاقاتوں کے بعد پاکستان میں رویہ گورنمنٹ کا جو ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر نے آج یہ بھی بات کی ہے کہ سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کرنا ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے، کسی بھی سائیڈ، وہ ظاہر اپنی جماعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پنجاب میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، اور کن شہروں میں اور کیا کچھ ہوا، حالات وہاں کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور سندھ حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، بہت بڑا قدم اٹھا لیا سندھ حکومت نے، اور عوام اشش کر اٹھے گی، اتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جہاں دیگر سندھ حکومت مسلسل سرگرم عمل ہے، ایک اور انہوں نے کام کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی انشاءاللہ راحت ملے گی، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جناب ہوا کیا ہے۔ اچھا، ایک اور ٹک ٹاکر سمیرا جس کی گھر سے لاش ملی ہے، یہ سارا واقعہ کیا ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے کہ جناب کبھی پشاور میں کوئی خسرا مارا جاتا ہے ٹک ٹاکر، کبھی پھر پتہ چلتا ہے پھر پنجاب میں کچھ ہو گیا ہے، پھر پتہ چلا کراچی میں، مطلب یہ ہو کیا رہا ہے آخر کار؟ ڈیجیٹل میڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، شعبے سے جن کا تعلق ہے یا میڈیا سے جن کا تعلق ہے، ان کے ساتھ خودکشی ہو رہی ہے، کوئی زہر دے رہا ہے، گھر میں مار رہے ہیں۔ اس میں ہم بات کریں گے۔ نویز زہیر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور دانشور ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں سینئر، سر بہت شکریہ آپ کا۔ انیس منصور صاحب معروف صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اب پہلی خبر، جس سے میں نے کہا انٹرنیشنل خبر اور دھمکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو انہوں نے دی ہے کہ حماس جنگ بندی نہیں چاہتی، ان کے لیڈروں کا شکار کر کے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ان کے لیڈروں کا شکار کر کے، یعنی کہ مار کے ختم حماس ہوگی، اور وہ اپنی شرائط پہ چونکہ وہ جنگ بندی چاہتے ہیں شاید اور حماس راضی نہیں۔ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر؟ کیا مزید، کیونکہ گزشتہ روز آپ نے بڑی ایک جذباتی گفتگو جو کی تھی فلسطین کے حوالے سے، تو ہم نے کہا آج وہیں سے آغاز کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ کہا کہ بات بالکل صحیح کر رہے تھے وہ، اور ہم صرف چونکہ بات ہی کرتے ہیں۔ بتائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ان کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حماس جنگ بندی نہیں چاہتی، اس کی وجوہات جو ہیں اس پہ کوئی غور نہیں ہے، شکار کریں گے۔ وہ جو اسرائیل بیٹھ کے روز پتہ نہیں کتنے بچوں کا شکار کر رہا ہے، جو روز ناشتے میں 100 آدمی کی جس کو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں نیتن یاہو، وہ نظر نہیں آ رہا۔ گولیوں سے زیادہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، اور ہر روز مر رہے ہیں، اور 2025 میں یہ کرونا شرما گیا، مطلب کرونا میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے ادھر بھوک سے لوگ مر گئے ہیں۔ دنیا بند ہو گئی تھی اس میں کسی کے کان پہ جوں نہیں ریکھ دیا، اور روز انسان مر رہے ہیں۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ جو اسرائیل کے لوگ قید ہیں تھوڑے سے مٹھی پر، وہ ان کے لیے اتنے اہمیت کے حامل ہیں کہ سینکڑوں آدمی روز جو مر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اور اگر وہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے پہلے سب کو رہا کرو جناب، پھر آپ جاؤ کہیں اور بسو، ان کی شرطیں ہی ایسی ہیں کہ کون اس پہ راضی کرے گا۔ پہلے بات کرتے تھے جب پریزیڈنٹ نہیں بنتے کہ ٹو اسٹیٹ، اب کدھر کیا ٹو اسٹیٹ فارمولا لائیں، کون نہیں جنگ بندی کرے گا؟ اور مجھے شرم آتی ہے یہ OIC سو کال جو بنی ہوئی ہے، اور جو بھی اتنے بڑے بڑے مسلمان ممالک ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کھلی دھمکی ہے، یہ دھمکی جو ہے نا، ان کی دھمکی نہیں ہوتی ہے، دے مین اٹ۔ اب دیکھیے گا، اب یہ بانٹنا شروع کر دیں گے۔ پہلے انہوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ بالکل۔ تو اس میں ضرور رد عمل آنا چاہیے OIC کی طرف سے بھی۔ باقی دنیا کے بڑے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، اقوام متحدہ پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہے، نہ ان سے جنگ رکتی ہے، نہ بھوک اور افلاس میں وہ کھانا دے پاتے ہیں، اور جو کھانا لائن لگا کے دے رہے ہیں ان تک کو مار دیا جاتا ہے پلان کر کے۔ یہ تو آ چکا ہے، نہ صحافیوں کو چھوڑا، خود اقوام متحدہ کے کتنے لوگ مر چکے ہیں، ان کو اس بات کی بھی احساس ہے۔ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا لو اقوام متحدہ، کاش ان کے لیے تو اٹھا نہیں سکتے ہو۔ تو یہ حماس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے امریکہ سر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں شکار کرنا پڑے گا اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ان کا تو وہی ہے نا کہ آپ جو نام ہوتے ہیں ان کو مار دیں گے، پہلے بھی مار دیے، کوئی بات نہیں، دوسرے آ جائیں گے، وہ مار دیں گے، تیسرے آ جائیں گے۔ جب تک کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا،
لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ شکار جب کہہ دیا انہوں نے تو بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ یہ ظلم و ستم ہوگا. یہ جو بھی ان کے وہ ہیں ان کو مار دیں گے مگر پھر دوسرے نئے آ جائیں گے, اس کو کیا کریں گے. نیت منظوری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کو؟ آپ دیکھیے علی, اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ان کچھ معززین کو بات ضرور سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام ملے, تو ظاہر ہے نوبل انعام ایسے ہی تو نہیں ملتا نا, آسان شرائط تو نہیں ہوتی ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید ہمارے معزز نوید بھائی جو ہے وہ یہ بھی ذکر کریں گے, لیکن خیر معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل, میں نے کل گزشتہ روز بھی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ اسرائیل کا منصوبہ اور امریکہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ڈیوڈ کوریڈور کو بنایا جائے, اور اس ڈیوڈ کوریڈور کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے غزہ کے وہ نہتے مسلمان کہ جن پر یہ بربریت مچائی جا رہی ہے. انہیں غزہ کی وہ اسٹیٹ چاہیے, وہ جگہ چاہیے, اور اس ریئل اسٹیٹ کو انہیں کنورٹ کرنا ہے لیبیا کی طرف یا کسی اور ملک کی طرف. یہ ایک ماسٹر پلان کا حصہ ہے. اسی لیے اس پلان میں کبھی ٹرمپ اسرائیل کو آنکھیں دکھا کر ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے نیتن یاہو سے وہ انتہائی ناخوش ہیں. آپ کو پرسوں کا ان کا اسٹیٹمنٹ بہت واضح طور پر معلوم ہوگا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیتن یاہو کر کیا رہا ہے, ہم چاہ رہے ہیں, اور نیتن یاہو جو ہے کبھی ادھر بمبارڈمنٹ کر رہا ہے کبھی ادھر بمبارڈمنٹ کر رہا ہے. اور آج انہوں نے جو ہے وہ حماس پر یہ بات کہہ دی. تو در حقیقت وہ دونوں طرف سے پریشر ٹیکٹکس کر کر امریکہ اپنے مفادات کو صحیح کر رہا ہے, اور ایک طرف اسرائیل کو وہ کہہ رہا ہے کہ کرتے رہو صحیح ہے, پھر کہتا ہے نہیں غلط کیا ہے, ذرا سا شور مچتا ہے دنیا کی طرف سے, تو پھر وہ جو ہے حماس کی طرف آ جاتا ہے. اصل منصوبہ تو یہی ہے کہ ہر صورت میں انہیں جو ان کا جو منصوبہ تھا اور جس کی طرف یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ غزہ کے لوگوں کو, مسلمانوں کو وہاں سے انہیں شفٹ کرنا ہے. اور یہ ان کا حتمی منصوبہ یہ ہے کہ جو ڈیوڈ کوریڈور ہے اس کے لیے کریں. آپ یہ غزہ کا دیکھ رہے ہیں, اگلے چند ہفتوں کے اندر جیسے یہ غزہ والا معاملات ایک طرف ہوگا, آپ کو چند مہینوں کے اندر آپ کو شام کی تقسیم نظر آئے گی. واضح طور پر شام تقسیم ہوگا, اس میں ہمارے پاس دروز اور کرد جو ہے وہ اسٹیٹس الگ ڈیولپ ہوں گی. یہ سب آپ کو آئندہ چند ہفتوں کے اندر یا مہینوں کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی, اور یہ جو حماس جنگ بندی پر بیان بھی داغ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اب امریکہ کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, امریکہ میں پاکستان کے وزیر خارجہ موجود ہیں جی ڈار صاحب, ان کی بڑی اہم ملاقات اپنے ہم منصب سے ہوئی ہے مارکو روبیو سے. اچھا, ایک بار پھر یہ اچھی بات ہے کہ امریکہ کا عالمی امن میں جو پاکستان کا مثبت کردار ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو لازوال قربانیاں ہیں ان کا بھی ایک بار پھر انہوں نے اعتراف کیا ہے. اچھا, اس کا اینگل ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ اس وقت خان کے بچے بھی وہی ہیں, ڈار صاحب بھی وہی ہیں, اور فیلڈ مارشل کے بعد اب اہم دورہ ہے یہ ڈار صاحب کا. ڈار صاحب اس سے پہلے گئے تھے افغانستان بھی, اور کہا جا رہا ہے ایران کے صدر آئیں گے اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ افغانستان گئے, پھر ایرانی صدر نے آنا ہے, ڈار صاحب امریکہ چلے گئے, خان کے بچے بھی وہاں ہیں, یہ سب کچھ کیا کھچڑی بن رہی ہے؟ اصل چیز پس پردہ کیا ہے جس کے اوپر اتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اس سارے معاملات سے خان صاحب کے بچوں کو تو الگ رکھیں, وہ الگ اپنے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ جو وزیر خارجہ گئے ہوئے ہیں, دیکھیں افغانستان سے مسلسل پاکستان پہ ان کے درانداز آ رہے ہیں, اور جو ہمارے شواہد مل رہے ہیں اور یہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں. پہلے چائنا نے کوشش کی تھی تو کچھ طالبان کچھ عرصے کے لیے رکے تھے, پھر افغان حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم طالبان کو جو ہے روکیں گے, غیر مسلح کر دیں گے. میرے خیال میں اس طرف سے انہوں نے گئے ہوں گے کہ بھئی یہ دیکھیں اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو پھر ہمارا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ اگر جہاں سے آپ پہ حملے ہو رہے ہو تو آپ پھر وہاں پہ اسٹرائک کریں. تو اگر آخری بات ان کی میرے خیال میں تو یہ کرنی چاہیے. آئی ڈونٹ نو وہ کیا کر رہے ہیں, آئیں گے یہاں پہ بریفنگ کریں گے تو پتہ لگے گا, لیکن میرے خیال میں تو یہ بات اس وقت کرنے کی ہے کہ اگر آپ آخری روک سکتے ہیں روکیں, ورنہ ہم اسٹرائک کر کے ہم پھر خود روک دیں گے. اتنی طاقت الحمدللہ پاکستان رکھتا ہے. ایران, یس, ایران کا ایک بڑا مسئلہ ہے. جس وقت جنگ بند ہوئی تھی تو بڑی باتیں ہوئی تھی, تو یہ بھی ہوئی تھی کہ ایران پہ سے پابندی ہٹا لیں گے. جو خدشہ تھا ان کا, وہ ایٹمی جہاں بننے تھے وہ سب تباہ کر دیے تھے. وہ خود مان رہے تھے کہ ہم نے اتنا کر کے تباہ برباد کر دیا, اب کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ایران پہ سے پابندیاں ہٹیں. اگر ایران پہ سے پابندیاں ہٹیں گی تو پاکستان کے بہت بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, خاص طور سے انرجی کا مسئلہ. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو گیس لائن ہے, پائپ لائن ہے, ایران آلموسٹ وہاں تک کمپلیٹ کر چکا ہے. پاکستان نے یہاں سے ملانا ہے, تو اس کے بعد پاکستان کا ایک بہت بڑا زرینہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
सस्ती गैस और सस्ती पेट्रोल हमें मिल सकता है। तो शायद उसकी कोशिशें हो रही हों कि ईरान के बीच में अगर कोई पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है तो वो करे। यही बातें हैं, असल तो वो आएंगे तो बताएंगे। इसके दरबरदा कोई और बात हो रही है तो वो हमारी नॉलेज में नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारी जो कुर्बानी है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और पाकिस्तान का जो मस्बत रोल रहा है आल यमन के हवाले से कम अमेरिका उसको मान तो रहा है। बिल्कुल मान तो रहा है, लेकिन वो एक पैसे पाकिस्तान को मिलते थे दहशतगर्दी की जंग में, जो पाकिस्तान का नुकसान होता था, तो उसमें अमेरिका से भी एक बड़ी इमदाद आती थी जो सदर ट्रम्प ने आते साथ रोक दी थी। उसकी बहाली भी अभी तक नहीं हुई है। यूएसएड की बात कर रहे हैं। यूएस एड जो दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को जो पैसे मिलते थे वो भी रुके हुए हैं। और पाकिस्तान इतनी ज़्यादा कुर्बानी दे चुका है फाइनेंशियल तौर पे भी और जानी तौर पे भी कि किसी दुनिया के मुल्क ने दी थी इस दहशतगर्दी के उसमें। और सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार भी हमारा मुल्क अभी भी अच्छा, है। ये एतराफ़ भी करते हैं और फिर पाकिस्तान में इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं आप। ये इल्ज़ाम तो अब ये इंडिया ही लगाता था और वो सब जगह नाकाम हो चुका है। इस वक्त तो इंडिया पे ये इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, राह खुल के। इल्ज़ाम तो नहीं है, हकीकत है वो तो। हाँ। अनीस मंसूरी साहब, इस मुलाकात को आप किस तरह देख रहे हैं? और डार साहब ज़ाहिर है मुसलसल राब्ते में हैं, ईरान से भी हैं और अफ़गानिस्तान से दौरे पे। अच्छा, इस मुलाकात में आपको क्या लगता है, क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी कह चुके कि जी मैं सॉलिसी किरदार अदा कर सकता हूँ मसला कश्मीर के हवाले से भी, वो भी क्या ज़हर बहस आएगा? और वो बात जो उन्होंने की थी क्या वही रह गई है? इस पर कोई बात नहीं हो रही? अली देखिए, एक तो ये खान के बच्चों का मामला नहीं है। जो सबसे बड़ा मामला है, जो दो मामलात हैं, उसे ज़रा सा देखने की ज़रूरत है। पहला मामला ये है कि वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान का जो वज़ारत ख़ज़ाना है और वज़ीर ख़ज़ाना, वो गुज़िश्ता 1 महीने से एक नेगोशिएशन में मसरूफ़ थे कि जिसे एक हतमी शक्ल दी गई है। और वो नेगोशिएशन ये थी कि आपको या मालूम होगा कि पाकिस्तान पर एक बड़ा टैक्स लगना था और जो टैक्स की शरह थी वो बहुत ज़्यादा लगनी थी। जो रवैया इस वक्त इंडिया या दीगर ममालिक पर रखा गया था वो उसके लिए एक नेगोशिएशन हो रहा था। पाकिस्तान को उस नेगोशिएशन को जो कुछ भी हुआ है उसे फॉर्मली के लिए वज़ीर ख़ारजा यानी कि जो हमारे इसहाक़ डार साहब हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और जो इसमें अभी तक, क्योंकि आपने देखे उन्होंने इंडिया के मुतालिक एक बार फिर ये कहा है, दीगर ममालिक के मुतालिक भी कहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस मुलाकात के बाद ये फार्मूला तय हो गया है कि पाकिस्तान का जो खसारा है या जो इंडियन खसारा जो था दोनों के दरमियान तिजारत का, उसे किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से इन मामलात को हल किया जाएगा मेरे मालूमात के मुताबिक। जो दूसरा बड़ा मसला ये था कि वो इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान के एक बड़ा अहम किरदार आगे चलकर होने वाला है। और ख़ास तौर पे पिछले दिनों आप देखिए कि पाकिस्तान ने जिस कॉरिडोर की बात की है और जो कि अज़रबैजान और अफ़गानिस्तान और फिर इस हवाले से काफ़ी पेचीदगियाँ पाई जा रही थी, वो एक मामला था। और साथ साथ इस खत्ते के अंदर ईरान के हवाले से बड़ी सूरत हाल की जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही थी वो थी। तो ये 2-3 मामला थे जिसमें मेन मामला जो था वो मेरी इत्तला के मुताबिक जो टैक्सेस का इशू था और जो सारे मामला थे वो फाइनल शेप में हो गए और मुमकिन तौर पर आपको अगले 2-4 दिनों के अंदर ये अनाउंसमेंट सामने आ जाएगा। अच्छा, मसला कश्मीर वहीं वहीं रहेगा जूँगा तो? ये मौजू नहीं था इस वक्त, और जो मेन मौजू था वो यही था जिसका मैंने आपसे अर्ज़ किया। और इस हवाले से आप देखिए हमारे वज़ीर ख़ज़ाना भी गए थे, इस वक्त भी हमारी जो क्योंकि हमारे साथ जो टेंशन रहती है हिंदुस्तान की उसमें तो बुनियादी मसला ही मसला कश्मीर है। देखिए अभी इस वक्त जो नेगोशिएशन हो रहा था वो ख़ास तौर पर देखिए इसी वजह से पाकिस्तान और उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग जो निचले लेवल पर थी अब ये तीसरे लेवल पर आ गई है। यानी कि पहले एक हुआ था मामला, मुज़ाकरात हुए, फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना गए, वहाँ से मुलाकातें हुई उनके साथ, और अब ये तीसरा लेवल था कि जिस पर ये और आइंदा दिनों के अंदर आपको बाकायदा इसमें ट्रंप अनाउंसमेंट करते हुए नज़र आएंगे पाकिस्तान के हवाले से जो टैक्सेस का इशू था। ये मेरे ख्याल से ये आखिरी स्टेप रह गया है जिस पर आपको अगले 2-4 दिनों के अंदर जो है वो ट्रंप खुद अनाउंस कर देंगे इस हवाले से। अच्छा, क्या कहेंगे ज़ुबैर साहब, उसमें एक नुक्ता खान के बच्चों का भी था जिसके बारे में अभी मैं सुन रहा था, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारी मुलाकातें उनकी हो रही हैं और कुछ तो मुलाकातों की तस्वीर सामने आ जाती हैं, नाम आ जाते हैं, कुछ मुलाकातें अंदरूनी खाना बहुत सारे अहम लोगों से भी हो रही हैं, लेकिन असल कोशिश कहा जा रहा है उनकी वो ट्रंप से मुलाकात होगी या ना होगी। क्या लगता है आपको? देखिए उनका 2 वीक का दौरा है और अभी अपने दौरे में जो भी इनके लॉबिस्ट हैं और जो भी इनके ख़ानदानी ज़राए हैं, तमाम असर रसूख है, उसको सबको ये इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ट्रंप
से या उनके करीबी इंतजामिया से इनकी मुलाकात हो जाए और वो एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप करके यहाँ पर आए कि जिस वक्त वो आएँ तो दुनिया की काफ़ी न्यूज़ की तवज्जो जो है ना वो इस तरफ हो जाए। अगर वो ये सब करने में कामयाब हो गए तो वो खान की रिहाई में एक कदम आगे जा सकते हैं और ये ही इनकी इस वक्त पूरी पीटीआई की सियासत का महवर है कि वो किस तरीके से खान को निकाल सकें, क्योंकि कोई और उम्मीद उनको अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। तो सारी उम्मीद के महवर यही हैं और वो भी मेरे ख्याल में अपनी पूरी कोशिश करेंगे और उन्हीं कोशिशों के सिलसिले में वहाँ मुलाकातें हो रही होंगी, उसमें तो कुछ बताई जाती हैं, कुछ नहीं बताई जाती, लेकिन बहरहाल अभी कबल वक्त है ये कहना कि उनकी ट्रम्प से मुलाकात होती है कि नहीं, ये बहुत बहुत बड़ा फ़र्क डालेगी अगर हुई तो मुलाकात। क्या कहेंगे नसीम साहब? देखिए, ट्रम्प से उनकी मुलाकात अभी नहीं होगी, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए। और उसकी रीज़न यह है कि ट्रम्प जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं और पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है, और ट्रम्प को भी मालूम है कि अगर इस मुलाकात के इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं और क्या ट्रम्प ज़ाहिर है ये मुलाकात करता है तो उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। अच्छा, अभी तक जिन लोगों से मुलाकातें हुई हैं वो ज़ाहिर है कांग्रेसमैन हैं और वो इतना असर रसूख नहीं रखते कि वो बाकायदा रिपब्लिकन्स को डिक्टेट कर सकें या लीड कर सकें इस रोल के हवाले से, अभी तक की जो सूरत हाल है सामने। अच्छा, अब क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मफादात हैं इस वक्त अमेरिकन स्टेट के या इस वक्त ट्रम्प के, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त ट्रम्प कोई भी इस तरीके की मुलाकात कर कर इस तरह का स्टेटमेंट, उन्हें मालूम है, वो हम लोगों ने बहुत सारे लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि किस वक्त कहाँ पर क्या कार्ड खेलना है और किस को कहाँ पर धमकी देनी है और किससे क्या डील करनी है। तो ज़ाहिर पाकिस्तान के साथ उनकी एक डील मौजूद है और उस डील को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहेंगे। ख़ास तौर पर आप ये देखिए, वो इंडिया पर जिस तरीके से दबाव डाल रहे हैं और दबाव बढ़ा रहे हैं, वहाँ की माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज़ को जिस तरीके से कहा गया है वो सारी चीज़ें कही गई है। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प इस वक्त इस स्टेज पर उनसे मुलाकात करेंगे। आज 24 तारीख है, 25 तारीख है, सॉरी, 5 दिन रह गए हैं और अगले फिर 5 दिन वो होते हैं कि जब इन्हें यहाँ आना है, जो अनाउंसमेंट है इनका। तो मैं नहीं समझता कि पाँच उस पर थोड़ी खबर ये भी दूँ मैं आपको, मीडिया के अंदर खबरें ये आ रही हैं कि 5 अगस्त को बड़ी भरपूर तहरीक एकदम अचानक शुरू होगी और 5 अगस्त महवर होगा। अच्छा, इस पर लेकिन 5 अगस्त को तो पीटीआई वाले कह रहे हैं, लेकिन इस पर आज इरफान सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की है। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि खान के बेटे कासिम सलमान अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो खुशी से आएँ। एहतजाज की जो तरीके उन्होंने बरतानिया में देखे उनके मुताबिक बेशक एहतजाज भी करें और पीटीआई को भी वो तरीके सिखाएँ अपनी पार्टी को। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हुकूमत को पीटीआई की तहरीक में ना दिलचस्पी है ना खौफ है, इसलिए 5 अगस्त के हवाले से हुकूमत ने अभी तक तो कोई मीटिंग भी नहीं रखी। तो ये पाकिस्तान में फिर इस तरह के बयान क्यों शुरू हो गए? पहले तो कैसे आते गिरफ्तार कर लेंगे और ये हो जाएगा तो फलां हो जाएगा, अब वो कह रहे हैं एहतजाज भी कर लें। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये बयानात होते हैं, ये एक उस वक्त की तब्दीली क्यों आई? असल सवाल ये ना, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई, में तब्दीली नहीं आई। देखिए कोई तब्दीली जुबैर साहब, तब्दीली तो बहुत आई है। राणा साहब का बयान अब नहीं पता ये ना आपको, माने अलग बात है। देखिए, आप 2 हफ्ते पहले के बयान उठा के देख लें, वाई से पहले क्यों नहीं आए, वो आके देखें, हम देख लेंगे। देखें, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं रियासत या हुकूमत, सही है, जिसे आप दोनों नाम ले लीजिए, वो ऐसा नहीं है कि इन्हें बिल्कुल भी ये जो इरफान सिद्दीकी की हमने हमारी निगाहें नहीं हैं, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। खौफजदा है हुकूमत। देखिए, हुकूमत हर वक्त निगाह रखती है, लफ्ज़ खौफजदा एक अलग मैटर हो जाता है। हुकूमतें हमेशा निगाह रखती हैं कि उनकी अपोजिशन क्या कर रही है, किस तरफ जा रही है और उन्हें कहाँ रोकना है, कहाँ दबाना है और क्या करना है। नहीं, निगाह तो जब रखेगा आदमी कि जब उनको मालूम होगा कि इनके अंदर जान सकत मौजूद है, हमें परेशान कर सकते हैं, तो आप या तो मान लें कि हाँ यार उनको परेशानी है हुकूमत को, या पूछ ही नहीं रहे, क्या कर लेना है उन्होंने, जाने दें। देखिए, हुकूमत को हर सूरत में चाहे छोटा एहतजाज हो या बड़ा एहतजाज हो, चाहे छोटी तहरीक हो या बड़ी तहरीक हो, हम उसे छोटी या बड़ी अपने तौर पे काउंट करते हैं, लेकिन हर हुकूमत छोटी या बड़ी हर चीज़ पर एक निगाह रखती है। उन्हें मालूम होता है, ये इरफान सिद्दीकी की बात, क्योंकि एक सियासी आदमी है, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप उससे अख्ज़ करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जिस तरीके की सियासी अपना तज्ज़िया पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वो जिस तरीके से बरतानिया में एहतजाज होता है उस तरीके का आकर यहाँ पर करें, तो दर हकीकत वो भी तो टॉन्ट ही कर रहे हैं ना, ये टॉन्ट कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहना ये है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अब डरा नहीं रहे, धमका नहीं रहे, गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे, पहले नून लीग वाले तमाम बातें कर रहे थे। देखिए, जिस पे याद होगा आपको, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ बात, आप शायद भूल जाते हैं कि बच्चों की वालदा ने ट्वीट इसलिए किया था, उसने कहा देखें अभी तो मेरे बच्चे आए नहीं, पहले से ही इन्होंने गिरफ्तारी की बातें शुरू कर दी और डराना धमकाना शुरू कर। सर है नहीं यही बात? आप सर शॉर्ट मेमोरी वाली बात कर दी। नहीं, मैंने शॉर्ट मेमोरी की बात नहीं की, मैंने कहा ये होता है, वो कभी डराएंगे, कभी आपको ये कहेंगे कि जी कोई मसला नहीं, आ जाए। सर अमेरिका जाने के बाद ही हुआ है फिर। अरे नहीं हुआ, आपका तज्जिया है, आप उसको तबसरा नहीं, मैं तो जानना चाह रहा हूं। कुछ भी करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। देखिए फर्क तो पड़ा है। अगर अनिल भाई
अगर आप इस बात को खैर महज आप पीटीआई को फर्क, आप नहीं, पीटीआई वालों की नजर में फर्क पड़ा। इस बात को महज इत्तेफाक आप कह दें, हाँ, चलें PTI आप इस बात को महज इत्तेफाक कह दें, मैं भी मान लेता हूँ इत्तेफाक, लेकिन फर्क पड़ा है उनके बयानात में पिछले 15 दिनों में, वो फर्क इतना नहीं, ज्यादा भाई, ये है। हुकूमत की चालें होती हैं, चलिए, कभी वो वो सख्त चालबाज बयान लोग देते हैं, हैं। कभी हाँ हर एक देता है। आप उनको हाँ, चालबाज लोग बोल रहे हैं तो हाँ, ठीक है, फिर हाँ, ये पीटीआई का मौकिफ ना, खुश हो गए ना आप? नहीं, वाह, 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 अगर वाह। आप ये बोले नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये ऐलान क्यों नहीं मैंने करते कहा फर्क पड़ता है कि भाई वो जलसा करें, जा करना है करें, मैंने एहतजाज कहा करें। है, फिर फर्क लाहौर पड़ता में है। दरखास्त दी हुई है, मैंने हुकूमत कहा कह क्यों नहीं है, देती? आए मैंने- सर, आप मीनार पाकिस्तान, मैंने कहा है इस्लामाबाद फर्क में भी पड़ता कर है, लें। मैंने कहा छोटी तहरीक हो, छोटा एहतजाज हो, बड़ा एहतजाज हो, हुकूमत हमेशा निगाह रखती है, उसको फर्क पड़ता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने चलो यही मान कहा दिया है। ना अभी आप, मतलब मैंने ये खौफजदा कहा है ना फिर। मान तो रहे हैं, कोई कह ऐसा तो रहे हैं, नहीं, फर्क आप लोग पड़ता है। अच्छा, लाहौर में जलसा करने पे या इस्लामाबाद में करने पे हुकूमत को क्या इशू है? अभी फजल रहमान साहब दंदनाते आएंगे, जलसे भी करके निकल जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। जमात इस्लामी करके चली जाती है। तो फिर ये मैं जानना चाह रहा हूँ, उनको क्यों नहीं करने हाँ, दे तो रहे? ये बताइए ना। यही तो बात मुसलसल कहते चले आ रहे हैं नवाज जोहरी साहब हर प्रोग्राम में कि जनाब क्यों इतना बड़ा बना रहे हैं उनको आप, पाबंदियां लगा लगा के। क्या कहते हैं जलसा आप? पता लग जाएंगे कितने आएंगे, बढ़ते हैं कि नहीं इसका बढ़ते मतलब हैं। है खौफजदा है और कि मैं कहीं बताऊं, लाखों आदमी अगर ना आ जाए चाहे ना आए। आप साबित करने लग जाएं तहरीक इंसाफ को कि लाखों मैं लोग आएंगे, साबित आपकी नहीं, मर्जी है, मैं आप नहीं- आपकी मैं मर्जी नहीं है। कह रहा लाखों लोग आएंगे, नहीं, वो एंगलिंग ये कर रहे हैं ना, करने दें। एक्सपोज नहीं, कर देते, एक दफा एक्सपोज करते हैं, Expose। उसके बाद ये कभी भी नहीं भाई आएंगे। आप कह रहे हैं 10,000 लोग भी नहीं होंगे, ये कह रहे हैं ना आप? मैं कुछ नहीं कहा मैं क्यों हो कहूंगा? सकता ना हो अली, हो सकता मैंने ना कब हो, कहा है? नहीं मैंने पता, कुछ लोग भी खौफ नहीं तो नहीं कहा। निकले। आप अपनी इस वक्त चीजें बनाते PTI रहें। की जो पोजीशन है, आप क्या कहते हो, जलसे की इजाजत अगर हुकूमत ने दे दी, कितने लोग आ जाएंगे? देखिए बात समझिए, कोई भी हुकूमत अब तो उसकी इजाजत नहीं देती यार, ये क्या बात देखिए, कर दिया? नहीं नहीं ऐसा नहीं, जलसे की इजाजत होनी चाहिए, करनी चाहिए, उनकी क्या बात खान के निकलनी दौर चाहिए। में अपोजिशन एहतजाज नहीं करती थी, जलसे नहीं होते थे, रैलियां नहीं निकलती थी, महंगाई मार्च नहीं होते थे? देखिए मेरी बात फिर सुनिए, सर है या नहीं? पीटीआई के मौकिफ को ना दीजिए, बाकी यार आपकी ये मर्जी अब है, देखो, आपकी PTI का मर्जी बंदा है, अगर है। यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन सवाल तो बनता है ना हाँ, फिर तो भी। पीटीआई का बंदा मौजूद है यहाँ पर, रूहें सारी नहीं, यहीं अब पर आप उनको मौजूद इल्जाम हैं। लगा रहे हैं, दुरुस्त बात नहीं है, लेकिन आप बात मैं कर उन रहे पे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ वो रूहें यहीं पर मौजूद ठीक है, हैं। आप सिर्फ इशारा कर बात रहे हैं कि जिससे बनी नहीं नहीं। होती, तो बात आप जिससे- हुकूमत का मौका मैं दे देना, हुकूमत आप भी का तो मौका मौजूद नहीं है, दे रहा। आप भी तो हाँ, मौजूद मैं क्यों है। हुकूमत का आप मौका आप किसी दूं? भी तर्जुमा आप से कम है उनके। मैं हुकूमत का आप मौका कह भी रहे नहीं हैं देता। हुकूमतें घबराए, आप कह रहे हैं झूठ बोलने और इरफान भाई सिद्दीकी, तो देखें, उसमें- मैंने कहा इरफान सिद्दीकी तो गवर्नमेंट का आदमी है ना, मैं उसको गलत कह रहा हूँ? देखिए मेरी बात समझिए, मैं आपको किसी की आप ज़बरदस्ती उसका तर्जुमान ना बनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की, कोई भी हुकूमत हो, उसकी छोटी तहरीक हो या बड़ी तहरीक हो, उसकी निगाहें होती हैं, वो उसको कैसे हैंडल करती है, उनके पास पूरा प्लान होता है। ऐसा नहीं होता कि उनके पास ठीक है प्लान ना इरफान हो। सिंह, मैं तो आपसे पूछा है कि भाई फिर कोई मसला ही नहीं है इस हुकूमत के लिए इरफान सिद्दीकी साहब के बकौल, फिर जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? आप कह रहे हैं कि जलसे की इजाज़त तो देखिए बगैर देखिए, खौफजदा भी नहीं है, इजाज़त भी नहीं दे रहे। मैं इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कोट करूंगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ताकि एक बार लोग- लाहौर में खिताब फरमा रहे थे, और जब खिताब फरमाते हुए वहाँ पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि अली वज़ीर को आपकी सिंध हुकूमत ने गिरफ़्तार किया हुआ है। सही है, तो क्यों गिरफ़्तार किया हुआ है? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर एहतजाज नहीं करो, मैंने गिरफ़्तार नहीं किया, जिसने किया है उससे बात कर लो। सही है, एक में तो आपको जलसे की इजाज़त ये नहीं कि फिर मैं- नून लीग नहीं दे रही, ये कहना चाह रहे मैं- हैं नहीं मैं दे रहे, आपसे बात ही नहीं जो कर रहा। दे रहे हैं उनसे पूछ लेंगे, वाह, क्या कहना चाह हुकूमत का रहे हैं? तर्जुमान आसान आ अल्फाज में ही गया। बात है मैं आपकी। आपसे ठीक ये है, बात कह आपको रहा हूं जवाब ना। मिल आसान गया। अल्फाज में ही कहा इन्होंने। हाँ, बिल्कुल जिनको ये देनी है, जिनको आसान नहीं का देनी, clear आप उनसे लफ्ज़ में। पूछ लीजिए भाई, ना हम उनके तर्जुमान हैं, ना हम उनसे बात कर रहे हैं। जनाब आप बताइए। देखिए, मैं जो भी एडवाइज़र हैं, जो भी हैं, उनको चाहिए कि वो रिविज़िट करें अपने उस पे, और इस तरीके से वो और पॉपुलर करेंगे। अगर कहीं इजाज़त देते हैं, देखो कितने लोग आते हैं, और वो जलसे में ज़रूर उनके जो रहनुमा अपनी तकरीरों में भंड मारेंगे, आपको बहुत सारा मवाद मिल जाएगा करने के लिए। अगर आप पाबंदी लगा देंगे, माइक बंद कर देंगे या बिजली बंद कर देंगे, तो उससे तो वो और बनेंगे। आप चीज़ें बंद कर देंगे तो वो चाहिए रहें कि बंद हो जाए पंजाब पूरा, 5 अगस्त से 14 अगस्त तक बंद रहे, वो तो चाहिए रहें, उनका तो काम ही यही है, हर ऐसे वक्त पे उनको टाइमिंग वो ऐसी चुनते हैं। आप उनको नाकाम बनाने के लिए जो है एक ऐसे हरबे इस्तेमाल करें जिससे कोई नॉनसेंस क्रिएट ही नहीं हो, ना आपको ट्रांसपोर्ट बंद करनी पड़े, ना ही आपको कंटेनर लगाने पड़े, ना ही आपको खंदकें खोदनी पड़े, ना ही तालीम इदारे बंद करने पड़े। बोला आओ जलसा करो, जाओ, सिंपल। आप तो इस हवाले से जाहिर है नहीं बोलेंगे, नहीं सुन आगे चले, वो बोल मैं चुके, क्या बोलूं? वो अपना बयान दे चुके, बड़ा इंपॉर्टेंट अगर आप समझे तो। जी इस पर एक बड़ी अहम चीज़ उन्होंने मियाँ साहब के हवाले से लोग अक्सर पूछा करते हैं, 3 बार के साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं जिनको कहा जाता है सियासत में। उनके हवाले से उन्होंने बात की है जी कि नवाज शरीफ जो नून लीग के सदर के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बिला वजह बयानबाजी, और वही कह रहे हैं दूसरी बात
تشہیر بھی نہیں چاہتے. اتنے کہ اندازہ کیجیے میاں صاحب کا بلا وجہ بیان بازی, تشہیر ان کا شیوا نہیں, وقت آنے پر وہ متحرک سیاسی کردار ادا کریں گے. تو کب وقت آئے گا جب وہ سیاسی کردار ادا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ تشہیر, یہ ہر اشتہار میں, نام, ہر اسکول کا ہر نام, ہر کالج کا اشتہار نام. میں ان کی تصویر ہوتی ہے, ہر سائن بورڈ میں پورے پنجاب جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے ختم ہوتا ہے منصور صاحب یہ بات وہاں سمجھ ان میں کی آئی آپ کو؟ تصویریں ہوتی ہیں. ہر نئی بننے والی 3 چیزوں میں سے 2 کا نام میاں صاحب کے نام پہ ہوتا ہے. وہ مگر تشہیر نہیں چاہتے. وہ کراچی میں ایک سماجی رہنما ہے, مجھے ان کی طرح لگ رہے ہاں, ہیں, یہی ہے, وہ بھی بالکل. تشہیر نہیں چاہتے تشہیر اپنی, نہیں چاہتے. لیکن ان کی تشہیر ہو رہی ہوتی ہے. تو بس اسی طریقے سے بات ہے. اور جہاں تک وہ ہے کہ بڑا وہ فعال کردار ادا کریں گے, تو بھائی میں اس بارے میں الیکشن سے پہلے سے اپنی رائے رکھتا تھا. وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اب میاں صاحب کبھی پرائم منسٹر نہیں بنیں گے, ان کی سیاست ختم ہو گئی. اب سربراہی طور پہ ان کو بنایا ہوا ہے مسلم لیگ کا صدر, جس میں میرے خیال میں ان سے زیادہ ان کی بیٹی کی چلتی ہے. ان کی بیٹی کی ذات چلتی ہے ہاں. آپ کو لگتا ہے؟ جی. اچھا جی, پنجاب میں مانسون کی ظاہر ہے بارشیں مسلسل چل رہی ہیں, ایک بار پھر تباہی مچائی ہے جہلم, لیا, چکوال میں. سر اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کیجئے. لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کے سامنے حالات ہیں مختلف علاقوں میں. 27 سے 31 جولائی کے دوران ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے. یہ بھی محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے بھی رپورٹ جاری کر دی ہے. اور سندھ میں بھی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے بعد سندھ کا نمبر بھی ہے, اور اس طرح بھی بات ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک نیا اشتہار آ گیا ہے, مختلف چینل پہ میں نے چلتے دیکھا ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کیا کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا کام کیا ہے سیلاب کے درمیان. اور دوسرا ان کا بیان موجود ہے کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ کی کوئی غفلت نہیں ہے. جو 188 آدمی مر گئے, وہ اللہ کی طرف سے آئی بھی تھی ان کی, اور قدرتی آفت تھی, اس میں مر گئے. سامنے گاڑیاں بہہ رہی ہیں, آدھے گھنٹے سے لوگ موویاں بنا رہے ہیں, لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے اس میں. ان جگہوں پہ سوسائٹیز بنا دی ہیں, اب ادھر گھر خالی نہیں کرائے جا رہے. سوسائٹیز جو کہ بڑے اہم قریبی خاندانی لوگوں کی ہے اور اس کے راستے میں ہے, تو یہ بد تباہی ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ بڑا بجٹ آئے گا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کا, اشتہارات کا, بھئی یہی ہوگا اور کوئی نہیں. کیا کہیں منصور صاحب؟ دیکھیے لاپرواہیاں ہیں ابھی بھی, چاہے پنجاب آپ لے لیں, سندھ لے لیں. سندھ میں تو بارش ہوئی نہیں ہے. میری بات تو سنیے, میں آپ تو سندھ آپ کے اس کے معاملے ساتھ پر ایسے آپ اس کے جذباتی ہو ساتھ جاتے کیوں جوڑ دیتے ہیں سندھ کو؟ ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, آپ سندھ کو جوڑ کے کیوں آپ وہ توجہ ادھر لے کے جاتے ہیں؟ پنجاب کی بات پہ آپ کبھی بھی نہیں بولتے. دیکھیے پنجاب ہے, آپ میری بات سنیے نا, پورا سنیے, آپ سندھ پہ جذباتی نہ ہو جائے. نہیں, غلط بات ہے. آپ اگر پنجاب اشتہار چلا رہا ہے, سندھ بھی چلا رہا ہے, صحیح ہے. اچھا اب آپ آئیے کہ پنجاب ہو, سندھ ہو, کے پی کے ہو, گلگت بلتستان ہو یا بلوچستان ہو, علی آپ کو صوبائی حکومتیں مکمل طور پر کسی بھی حادثات یا کسی بھی قدرتی آفات کے وقت انتہائی مفلوج, بے بس اور لاپرواہ نظر آتی ہیں. وجہ یہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے کبھی بھی, حکومتوں نے نہ ہی اپنی لوکل گورنمنٹس کو اتنا مضبوط کیا ہے, نہ ہی انہوں نے کبھی بھی اپنے وہاں کی جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو اتنا مضبوط کیا ہے. اختیارات ایک جانب منتقل ہوئے ہیں اور لوگوں کا حال سے بے حال ہوا ہے. دیکھیے آج اتنے دن ہو چکے, آپ نے پنجاب پہ بات کی, آپ نے سندھ پہ بات کی, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے گلگت بلتستان والا جو معاملہ ہے, میں اس کے بعد اسی بات کر رہا تھا, وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی ہے سر. ابھی تک جو ہے وہ راستہ نہیں کھل سکا ہے. بالکل بالکل. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کی ایک وفاقی حکومت موجود ہے, صوبوں کے اندر حکومتیں موجود ہے, آپ ابھی تک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے. بالکل ایسے ہی. پنڈی کے اندر جو صاحب ریٹائر ایک کرنل صاحب کی لاش تو مل گئی, لیکن ان کی بیٹی کی لاش ابھی تک نہیں ملی ہے. آپ یہ بات دیکھیے کہ اس وقت ابھی تک آپ سوات کے لوگوں کا جو مسئلہ تھا, جو وہاں پر انکوائری ہے, وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی اور وہاں پر مسلسل برساتیں ہو رہی ہیں. آپ اس وقت یہ دیکھیے کہ حیدرآباد کے حوالے سے جو باتیں کہی گئی تھی, جو دعوے کیے گئے تھے, وہ تاحال ابھی تک حل نہیں ہو سکے. آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان کے, اپر بلوچستان کے اندر, یوک پشین کے اندر جو تباہیاں مچیں, اس کا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہوں, یہ تمام کی تمام حکومتیں اپنی تشہیر پہ زیادہ فوکس کیے ہوئے, لیکن زمینی حقائق کی عوام کو بتانے سے دور بھاگتے ہیں. اگر پنجاب حکومت کے بارے میں ٹی وی چینلز بتا دیں گے تو ان کو اشتہار نہیں ملے گا. سندھ حکومت میں اگر ایک صاحب آپ سے ناراض ہو گئے تو آپ کو اشتہار نہیں ملے گا. کے پی کے ظاہر اگر آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ کو اشتہار وہ نہیں دے گا. تو آپ کا میڈیا تو اس وقت وہ حال ہو چکا ہے اس کا کہ وہ عوام کو بتانے سے ہی قاصر ہے کہ جناب ہم اگر بتائیں گے اور محترمہ یا صاحب
नाराज हो गए नाराज तो ना हम हो क्या जाए, कर लेंगे, नाराज ना हो हम जाए। तो फंस जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। हम तो उनकी नाराजगी से डर लगता है। वो आपने एक बड़ा मशहूर जुमला सुना है ना कि लोग मरते रहें चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन वो सांप थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है। तो यहाँ पर इन लोगों की नाराजगी से डर लगता है कि जनाब किस तरह नाराज हो गए, नहीं हम सबकी दुकानें बंद हो जाएगी। ये बात है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। साहब को राज़ी करके चले तो सब हर तरह का आपको मिलेगा, साहब नाराज़ तो सब नाराज़। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ुबान ना किसी साहब को खुश करने के लिए है ना किसी साहिबा को, और हम मुसलसल बोलते आ रहे हैं, भले हमें दे ना दे, लेकिन जो हक बात है सच बात है वो कहेंगे। अच्छा जी, एक ख़बर ये भी शामिल करते हैं, बड़ा अहम दौरा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, और वो हैं चाइना में। उस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि फील्ड मार्शल का चाइना का जो सरकारी दौरा है, चीन के आला सियासी व अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें हुई हैं, और ये बड़ा अहम दौरा है। अच्छा, अहम इसलिए ज़्यादा करार दिया जा रहा है इसको क्योंकि इस पर BBC और दीगर चैनल्स भी बात कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई थी ट्रंप से, और अब उस वक्त हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या फील्ड मार्शल ख़ुद शायद दौरा करें चाइना का, क्योंकि पाकिस्तान का अब ज़ाहिर दोस्ती बहुत अहम है चाइना से पाकिस्तान की। तो इस दौरे को आप अब किस तरह कितनी अहमियत है इस दौरे की, और क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ शोबाजात में ताउन, इलाक़े इस्तेहकाम के बारे में बातचीत हुई है, ख़ुद मुख्तारी के हवाले से बातचीत हुई है, चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इक़दामात पर पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ भी की है, सराहा भी है। किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, इतना हाई लेवल का जो भी दौरा होता है वो बहुत अहम होता है। कोई आम दौरे के लिए इतने हाई लेवल के लोग नहीं जाते, और उनकी मुलाकात भी बिल्कुल टॉप लेवल पे हो रही है। और जिस किस्म के हालात हमारे इलाके में चल रहे हैं, हमारे जोग्राफी हदूद में हो रहे हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये वाकई बहुत अहम मुलाकात है। इसमें ये जो बातें सामने आती है ना, ये तो सरसरी बात ही होती है कि बाहमी दिलचस्पी की बात हुई और ये हुआ सराहा, और असल बात जो हो रही होती है वो पसे पर्दा होती है। और उसमें हो सकता है ट्रम्प की कोई उसमें डिप्लोमेटिक बातचीत हुई हो जिसको ये यहाँ पे करेंगे। ईरान का मसला भी हो सकता है ज़ेरे बहस आया। इंडिया ने जो पानी रोका हुआ है हमारा, इसने उससे वो बात भी आ सकती है। सीपैक को आगे बहुत 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 आगे तक जाना है, उसके लिए भी बात हो सकती है। बहुत अहम दौरा है, और इसमें जितनी चीज़ें बाहर आएंगी हमें उसी से पता लगेगा जब वो उनके तर्जुमान उनको बताएंगे। क्या कहेंगे इस दौरे के हवाले से? देखिए, ये दौरा ज़ाहिर है पाकिस्तान, चीन और इस खत्ते के लिए फ़ैसला साजी का दौरा है ये। इसमें मैं इसे बिल्कुल ये दौरे को इस तरह से नहीं समझता कि इसमें फ़ैसले नहीं हुए होंगे। इसमें फ़ैसले हुए होंगे, और वो फ़ैसले न सिर्फ दिफाई हवाले से हुए होंगे बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल के हवाले से भी हुए होंगे। आपको मालूम है कि इस वक्त सीपैक के हवाले से जो तशवीश पाई जा रही थी, गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ हलकों ने और पाकिस्तान के इदारों ने इस हवाले से काफ़ी कोशिश की कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से कोई इस तरह के हमले नहीं हुए हैं। उन्होंने रोकने की सिर्फ भरपूर कोशिश की, क्योंकि चीन की तरफ से इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। ज़ाहिर जहाज़ों की ख़रीदारी से लेकर दीगर मामलात भी उसमें ज़ेर बहस आए होंगे। और तीसरा बड़ा जो सबसे बड़ा मसला है वो है इस इलाके की बदलती हुई सूरत हाल। देखिए, बांग्लादेश चीन के करीब बहुत ज़्यादा आ रहा है, पाकिस्तान भी करीब जा रहा है, श्रीलंका बहुत करीब आ रहा है, बहुत से मामलात हो रहे हैं, और मेरे ख़्याल से शायद मुतवक्किल के तौर पर श्रीलंका का दौरा भी है इसमें। और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के तामिल्स के हवाले से बड़े मामलात रहे हैं, और आपको मालूम होगा तामिल को ख़त्म करने में वहाँ 27 तारीख को, आई थिंक शायद 27 तारीख को उन्हें वहाँ जाना है, जिस पर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। और तो ये 27 तारीख को जो वहाँ पर जाना है, उनको विज़िट करना है, और उस हवाले से ये जो बढ़ता हुआ एक ऐसा अलायंस डेवलप हो रहा है सार्क की से तब्दील होकर, जिसमें इंडिया शामिल नहीं है बल्कि ये चीनी ब्लॉक कहलाया जा रहा है, कि जिसमें चीन, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान और उसके साथ साथ फिर श्रीलंका, और फिर मुतवक्किल तौर पर ईरान भी शायद इसका कुछ हिस्सा बन जाए। तो ये एक बड़ी तब्दीली दोनों में हो रही है, और मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला साजी के लिए सारे मामला हो रहे हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम के आखिर में दो खबरों में जल्दी तबसरा कर लेते हैं। एक तो सिंध हुकूमत का जो बड़ा इक़दाम है, कराची की सड़कों पर पार्किंग फ़ीस मुकम्मल उन्होंने ख़त्म कर दी है, और आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी अब खैर जारी कर दिया है कि शहर कायद की तमाम सड़कों पर चार्जेड पार्किंग फ़ीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। पार्किंग फ़ीस अब सिर्फ प्लाज़ा, प्लॉट्स या मखसूस कौंसल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि शहर भर में अब सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा पार्किंग फ़ीस वसूल नहीं कर सकेगा, और गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फ़ीस लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसी प्रोग्राम में हमने इस पर बात की थी जिस वक्त ये कराची की 32 सड़कों और मकामात पर पार्किंग मुफ्त की गई थी। अब पूरी कराची में नोटिफिकेशन के मुताबिक मुफ्त कर दी गई है। अब इस पर अमल दरामद कितना होगा, पहले आप बताएं, आप पर हमेशा पूरी उम्मीद रहते हैं। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, पहले केएमसी ने खाली ख़त्म की थी, अब जो है बल्दिया ने भी कर दी, तो मतलब पूरे कराची में हो गई है कंटोनमेंट फ्री पार्किंग। अब साथ साथ उन्होंने ये भी एक बात अच्छी कर दी कि इसकी पार्किंग की जो भी फीस लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब काम है इंतज़ामिया का और पुलिस का, हर इलाके के एसएचओ को भी पाबंद करना चाहिए कि जिस इलाके में पार्किंग दे रही हो, उनकी मोबाइल तो फिर नहीं होती है, खातों से बड़ा शौक होता है उनको मार्केटों में फिरने का, हमने आपने देखा है, तो वो फिरते हुए देखे कि कौन वहाँ पार्किंग की पर्ची लेके खड़े होकर पार्क करा रहा है और उनको उठा के गिरफ्तार करें। अब 2 से 3 दिन तक अगर आप सही से ये कार्रवाई कर लें शुरू के, तो ये मेरे ख्याल में कराची की आवाम को इस मुसीबत से तो निजात मिल सकती है अगर कर लें। और कौन कराएगा सर? ये अब चाहिए कि इंतज़ामिया को देखें, उन्होंने तो बना दिया, कानून कर दिया। अब इंतज़ामिया जिसमें सबसे अहम है पुलिस क्योंकि पुलिस की नज़रें हर पार्किंग पे, हर प्लाजा पे, हर मार्केट पे होती है। मार्केटों के आसपास मंडलाती मोबाइलें आपने देखी होंगी, और अगर वो देख रहे हैं और कोई पार्किंग फीस ले रहा है, फिर जिम्मेदारी पुलिस पे, फिर पुलिस को डालेंगे, फिर हम उनको समझेंगे। क्या कहने सुनते साहब, एक अच्छी खबर है अगर अमल दरामद हो जाए। देखिए, मैं आज की आपको बात बता रहा हूँ, आज भी टीएमसी की, टाउन म्यूनसिपल की कैप पहने हुए है हैरत अंगेज तौर पर कैंट के इलाके में, यानी कि सदर कैंट में आता है, ये कैंट के इलाके में मार्केट के अंदर पार्किंग वसूल की जा रही थी। मैं आपको पूरा ढांचा बता रहा हूँ। टीएमसी की कैप लगाई हुई है, सही है कंटोनमेंट का एरिया, और सदर में मेन बोरी बाज़ार पे, उसके इर्द गिर्द, ये बलोच आइसक्रीम वाली गली के अंदर, मैं आज का खुद गवाह हूँ कि वहाँ पर ये कार्रवाई हो रही थी। अब आप बताइए। कंटोनमेंट बोर्ड की कंफर्मेशन में ये अभी तक नहीं आई है, यानी अगर आप इसको मजीद कंफर्म कर दें कंटोनमेंट की बात नहीं हो रही कि जहाँ केएमसी है या केडी है, कराची की बल्दिया है, उन इलाकों में तो क्लियर एंड लाउड मैसेज आ गया। अब कंटोनमेंट बोर्ड वालों को भी चाहिए कि वो भी रहम कर दें, जो उनके इलाके हैं, जब पूरा कराची कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी करें। टीएमसी की कैप क्यों जो लगी हुई है? कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलाके आते हैं उसके अंदर उनकी भी टाउन म्यूनसिपल गलत है, अगर इसके दिन में तो जाली है। अच्छा, इस पे कार्रवाई कैसे हो? बहुत आसान कार्रवाई हो सकती है। नासिर को बोले, मुर्तज़ा को बोले, नहीं, ये सैयद पुलिस गनी का को काम, बोले। ये पुलिस का काम है। पुलिस का काम। अब पुलिस का काम है, कानून के खिलाफ उन्होंने बोला कार्रवाई करें, अब गिरफ्तार करें, पार्किंग वाले को उठा के डाले मोबाइल में, 10 आदमी तमाशा भी देखें। पुलिस ना माने फिर कहाँ जाए? पुलिस नहीं माने तो फिर हम और आपका काम है कि हम पुलिस को एक्सपोज करें इस किस्म की। कल से मैं तो बनाऊंगा वीडियो, जहाँ मुझे लगा कोई पार्किंग ले रहा है, बना के आपके सामने डालूंगा वीडियो, आप लोग भी करें, बाकी लोगों से कहते हैं आवाज उठाएं। अच्छा, जाते जाते घोट की सी खबर शामिल कर लें। टिकटॉकर हैं सुमेरा, उनके घर से लाश मिली है और उनकी बेटी ने कहा है कि चंद अफराद ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, मेरी माँ को जहर की गोलियां देकर कत्ल किया गया है। और ये इलाका है सिंध का घोट की, और ये टिकटॉक वगैरह बनाया करती थी, बड़ी फेमस खातून है। क्या कहेंगे सर आप, ये क्या हो क्या रहा है? इस तरह के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या मीडिया पे काम कर रहे हैं या सहाफ़ी हैं या इस तरह की ख़वातीन जो काम करती हैं, उनके ख़िलाफ़ ये घर से लाशें मिल रही हैं या जहर दे दिया है या तेज़ाब फेंक देते हैं, मतलब किस किस्म का माशरा होता जा रहा है? ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार मज़ीद ख़वातीन हो रही इस तरह के इक़दामात की वजह से। देखिए, ये अलमिया है, और ये जहाँ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वहाँ ये कुछ नुकसानात भी हमें इसके साथ जहेज़ में मिल रहे हैं। ख़ास तौर से ये जो ऐप है टिकटॉक, इस बनाने का शौक़ शहरों से निकल के छोटे छोटे देहातों में चला गया है। जब अब कभी आप देखें टिकटॉक में, तो उसमें ऐसे इलाके जहाँ पहले तो एक ज़माने में तो औरत का चेहरा नज़र नहीं आता था, अब वो टिकटॉक में गाती और गुनगुनाती, डांस करती नज़र आती हैं, और बड़ी चीज़ें एक्टिंग करते हुए, एक सोशल है उसका है। और खिलाफ है मैं नहीं खिलाफ, मैं इसकी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उस इलाके में ये चीज़ को अभी हज़म नहीं किया जा रहा। गोट की सिंध का बिल्कुल आप देखें जो इलाका है, वो बॉर्डर से लगा हुआ उधर, उस इलाकों में इतनी अभी ये चीज़ को हज़म करने में टाइम लगेगा कि उधर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ अब तक। तो बस अब इसको इसी तरीके से काश ये भी गुलिस्तान के मसले की तरह उठे और वहाँ पे भी कार्रवाई हो और गिरफ्तार हो। जैसे पहले कहते ना, उन सरदार का 1 दिन का बड़ी मुश्किल से रिमांड मिला है, उसके बाद 10 दिन का भी रिमांड इसी अदालत से मिला है। आज वो 10 दिन
तक भी वो रहेंगे, वरना पहले किसी ने सोचा नहीं था। ये सोशल मीडिया की ताकत से है। अच्छा, मैं इसलिए मैंने कहा, इसी हफ्ते आपको याद होगा यूट्यूबर हैं निगार खान, वो भी इस्लामाबाद से लापता हैं, उनका पता नहीं चल रहा। तो मतलब इस तरह की बातें इस डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, और फिर ख़ास तौर पर जहर दे दिया या मार दिया या प्रसार तौर पर जहाँ बात कोई हो गई, तो इसके लिए आपने समझते हैं कि कोई हुकूमत को थोड़ा सा फुर्ती दिखानी चाहिए, इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि ख़वातीन मेन चीज़ ये है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बाहर जो खबरें बनती हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो ज़ाहिर इस तरह की खबरें जब आती हैं सामने। नहीं, ये इसके लिए दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। हमारी थोड़ा सा एजुकेट भी करना पड़ेगा हमारे माशरे को कि क्या चीज़ ठीक है तो तालीम पे बहुत और क्या चीज़ नहीं है। ये हम अगर इस तरह देखें, हम माशी तौर पे जो है ना डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, नहीं हम पे कोई खुदा ना खाता कोई किसी की तरफ ताकत नहीं है, कोई बरन तौर पे कोई हम पे कब्जा करे, हमको वो करे। हम जो पस्ती में जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो हमारा ये सोशल है। हम उसमें हम इतने बेस हो गए हैं, हम उसमें डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। हमारा माशरे किस जगह जा रहा है हमें पता नहीं है, मकसद हमारे हाथ में नहीं है। मतलब इसमें कोई और चीज़ मेरे मुंह से निकलेगी तो वो पकड़ी जाएगी। हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हो रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा रिजिड भी हो रहे हैं, हमको पता नहीं हम कहाँ कर रहे हैं नहीं। और ये माशरे के हर हिस्से में इसके लिए स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी से लेके घर से इसकी तालीम देनी चाहिए कि आप हर घर वाले जिम्मेदार हैं, नहीं, घर वाले की अपनी जिम्मेदारी है, स्कूल कॉलेज तालीम इदारों की अपनी जिम्मेदारी है, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इंसाफ देने वाले इदारों की है कि इंसाफ दें, जहाँ जुल्म हो वहाँ इंसाफ मिले, ताकि अगली बार जुल्म करने वाला सोचे कि भाई मैं जुल्म करूंगा तो मुझे भी कटाने में खड़ा किया जाएगा। ये तो बात है ना। ये जब इस तरह नहीं होगा तो फिर कल कोई और होगी, पैर कटे मारे। हम आखिर में ये बात कह देते हैं तमाम सूरत हाल को देखते हुए, जब ख़वातीन के साथ कहीं भी जुल्म देखते हैं कि जी वो देखें शऊर नहीं है, तालीम की कमी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर से पढ़कर माशाल्लाह आए हैं, आसफा भी आई हैं, बख्तावर भी बाहर से पढ़कर आई हैं। ये तो बाशऊर लोग हैं सारे, जदीद तालीम याफ्ता हैं। लगता ये था कि जो आएंगे तो इंशाल्लाह सिंध में तालीम की रोशनी मज़ीद फैलेगी, और दावे तो अभी भी यही हैं सिंध हुकूमत के। लेकिन फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो अफसोस का इजहार करते हैं तमाम लोग, फिर दुनिया भर में बातें बनती हैं। आप क्या कहेंगे, वजह क्या है? अभी जिस तरह बात की बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड क्यों रखा हुआ है सिंध हुकूमत ने? देखिए पूरे पाकिस्तान में ये है। अभी 4 दिन पहले बलूचिस्तान का वाक़या हुआ, आप तो कबायली निज़ाम उधर भी हुआ, इधर भी हुआ, उधर भी यही है। उधर भी आप यकीन मानिए आधे से ज़्यादा फैसले जिरगों में होते हैं, वहाँ की पंचायतों में होते हैं। मुलव्विस है ज़ुबैर साहब कह रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कह रहे हैं आप पॉइंट स्कोरिंग करना छोड़िए, ये बहुत सीरियस मसला है। सिंध में भी जिरगे हो रहे हैं, कबायली इलाके मौजूद हैं, हर चीज में पॉइंट स्कोरिंग नहीं करें। ये हकीकत है कि बहुत सारे फैसले जिरगों में, पंचायतों में उसमें होते हैं। इस वाक़ये पर इतना ब्लेम किया बलूचिस्तान हुकूमत को कि देखिए कबायली निज़ाम और ये सारी चीज़ें, तालीम से दूरी, और यहाँ क्या हो रहा है? अली, मैंने आपको ये पहले कहा था कि सिंध असम्बली के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो जिरगे कर रहे हैं। अव्वल बात, मुराद शाह भी जाते होंगे। अव्वल बात, आज जब आपकी कुछ MPs ख़वातीन को एक टास्क दिया गया सिंध असम्बली के अंदर, मैं कहानी बता देता हूँ आपको पूरी। उसको कहा गया कि आप एक करारदाद लाएं कि जिसमें बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है उसके ख़िलाफ़ आप भरपूर तकरीर करें। उसके बाद सादिया जावेद नाम की एक खातून है, MP हैं, किसी ज़माने में किसी की चहीती थी, आजकल किसी की चहीती है, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया, और उसके बाद एक इखलासी खातून है, इखलासी खातून है, सही है। मैं उसकी कास्ट इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि इन लोगों ने बाय कास्ट उसको, क्योंकि वो बलोच कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, उसको कहा कि आप तकरीर करें, और उसने कहा कि जनाब ये गलत हुआ है, गलत, अपना इमेज देने के लिए ना। उसी दौरान जब ये खिताब कर रही थी तीनों खवातीन, तीन खवातीन ने खिताब किया, इसी दौरान ये वाक़या रोनुमा हुआ, मेरा वाला उसी दौरान ये वाक़या रोनुमा, उसी दौरान ये इतलाई। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि कहे जनाब ये जो वाक़या है ये गलत हुआ है, और अगर हम वहाँ के वाक़ये की मुखालफत करते हैं तो यहाँ की भी करते हैं। घोटकी का जो MP है मेरे सामने बैठा हुआ है, कहती कहे ना पीपल्स पार्टी, घोटकी का MP है मेरे सामने बैठा हुआ है, और उसका ताल्लुक किसके, तो वो जवाब दे इसको। लेकिन सुमेरा हो या हुमेरा हो या कोई और बच्ची हो, पाकिस्तान में हो के जाए किसी भी तो बात कोने में खत्म हो, कर देते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, सिंध की बात करें,
बस सिंध की बात करें, अब देखिए हर चीज में अली पॉइंट स्कोर नहीं होता यार खुदा आज का वाकया वास्ता। कहाँ का है? ये बलूचिस्तान का पाकिस्तान वाकया है। हमने डिस्कस किया है यहाँ बैठकर। भाई आज बलूचिस्तान वाकया में गोरकी का है। बलूचिस्तान की बात कर रही हैं और अपने ही सामने एमपी है जो उसका उसमें क्यों बैठा नहीं हुआ है, बात कर उसकी रही? बात क्यों नहीं कर रही? वहीं पर अरे उसका वजीर दाखिला बैठा हुआ है। सबसे पहले इस बात की मैंने मजम्मत करके मैं आगे बढ़ा और मैंने ही एतराफ किया कि हाँ सिंध में भी ऐसी जगह हैं, सिंध में भी अभी भी अरे फैसले होते हमारा हैं। कहना यह है कि लेकिन- एक चंद खवातीन जब एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम कर रही हैं, अरे तो लेना सादिया जावेद को लाइन पे, उससे पूछे आप मैं मुझसे तो या उनसे कह पॉइंट रहा हूँ स्कोर ना, करने की तो क्या- वो जो घोटकी में हमारा वाकया यही हुआ, अलमिया है। नहीं मैं तो ये इस कह अलमिया रहा का हूँ, ये अलमिया मैं तो है। कह रहा हूँ जब वो वहाँ उनके सामने बैठी उस पर बात नहीं कर रही, वो उधर बलूचिस्तान पे बात कर रही, उधर कहती कि ये जो हुआ ये घोटकी का एमपी भी जवाब दे। लेकिन ये बात दुरुस्त है जुबैर साहब की जो कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ बिलावल भुट्टो ज़ाहिर पढ़े लिखे आदमी के होते हुए कह रहे हैं कि यहाँ भी कबायली निज़ाम है सिंध में। तो वो तो है बिल्कुल मौजूद है, क्यों मौजूद और नहीं है? आप तो ऐसे नन्हे बन जाते हैं अली, बात दफा जैसे आपको पता नहीं पानी को मम्मम बोलते हो, तो फिर ये या तकरीरें फिर क्यों हुई भाई? निवाला जो है मुंह की जगह कभी कभी नाक में भी वो डाल तो देते हमारे- हो। तकरीरें क्यों हुई फिर ये? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमारे वो इस जो पे फिर क्यों मजम्मत नहीं कर रहे? तीनों ने तकरीर क्यों की? पाकिस्तान का कौन सा सूबा या कौन सा जगह है जहाँ ये जिरगा पंचायत या इस किस्म की चीजें नहीं होती? यार हम बात सिंध की करेंगे ना और तो जान सिंध में होती है ना, खाली सिंध की बात करूं, बाकी पाकिस्तान के बच्चों की बात नहीं करूं। हम जब अच्छा उनको तो बोल रहे थे वहां की बात हुई, अब सिंध ले आए, आप कहाँ जा रहे हैं? जनाब मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सिंध की पहले बात की, सबसे पहले मजम्मत की मैंने, आपके सामने एतराफ किया जिसको आप बोल रहे हैं। आपने तो नहीं बोला ना कि अभी भी सिंध में होते हैं जिरगे, मैं बता रहा हूँ हो रहे हैं, हर जगह होते हैं और नहीं होनी चाहिए। और कानून कैसे को खत्म होंगे? फौरी और सस्ता इंसाफ दे दिया जाए लोगों को। एफआईआर तक नहीं करती हैं, आप थाने में आप शहर में एफआईआर कटवा के दिखाएं एक वाकये की, अली आपको ब्लक पता जाएगा। तो लोग इसलिए पंचायत में जाते हैं जहाँ फौरी फैसले हो जाते हैं। इस किस्म के फैसले उनको और तबाह बर्बाद कर देते हैं पंचायत को। ये फैसला पंचायत से नहीं होगा, ये हुआ होगा गैरत के नाम पे कत्ल, कि मेरी बेटी नहीं, बहन नहीं, या नहीं, किसी ने नहीं, ऐसी मैं- मूवी मैं- बनाई मैं- या ऐसी वो बनाई। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात, मुझे नहीं ये पता मेरी- किस किस्म की मेरी- टिकटॉक मेरी- थी मेरी- उसकी। मेरी वो बात ये कह रहे हैं जी रिश्ते नहीं, के मैं- हवाले मैं- से मेरी- मेरी सुमेरा चंद मैं- अफराद मैं सुमेरा शादी के लिए आ जाएगा जबरदस्ती सामने। कर रहे देखिए थे। सुमेरा की बेटी है 15 साल की, जी उसने कहा मेरी माँ के जबरदस्ती करना चाह रहे थे शादी। उसकी वो बेटी कह रही है कि मेरी माँ से जबरदस्ती शादी करना चाह रहे थे, ताकतवर लोग हैं वो, बाकायदा माँ से घर करना में- चाह रहे थे या वो माँ बेटी से? माँ से, टिकटॉकर माँ थी इसकी। माँ से। अब आप वहां कह रहे थे ना 4 बच्चे और 5 बच्चों वाला किस्सा, जरा सा मैं आप कह रहे थे ना, आपने जो बड़े दिफा किया था कि 4 बच्चों की माँ हो, और अगर वो, अब जरा यहाँ सुनिए, यहाँ इसका बिल्कुल रिवर्स ना। अब वो बच्चों की माँ है, उसके दोनों बच्चे नौजवान हैं, सही है। उसको बाकायदा प्रेशर दिया जा रहा था कि हमारे साथ निकाह करो, वो नहीं करना चाहती, वो शादी करो, हम वो नहीं करना चाहती। उसको घर में घुसे हैं, कमरे के अंदर बंद किया और जबरदस्ती उसको जहर दिया, बकौल उसकी बेटी के, बकौल उसकी बेटी के। पुलिस को सारे नाम बताए गए, हरकत में नहीं आई। पुलिस को सारे नाम बताए गए, वाकये को 12-14 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब इसका जिम्मेदार मैं किसको करार दूं? को उधर के, चलिए मैं मानता हूं बलूचिस्तान की हुकूमत लाख बेकार सही, लेकिन एक चीज वायरल हुई, उन्होंने दिखाने के लिए ही सही एक एफआईआर तो दर्ज की, एफआईआर दर्ज करने दिखाने के लिए एक दिन के लिए सरदार को पकड़ा ही तो सही। देखिए अली वो 36 घंटे में हुआ था ना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ ये भी 24 घंटे में बंदा गिरफ्तार हो जाएगा। अरे मजम्मत तकनीकी असेंबली में यार, अरे यार असेंबली असेंबली में से तो मैं कह रहा हूं ना, वो उधर अरे बात नहीं करें की नहीं की करनी चाहिए थी, उस वक्त वाकया हुआ हाँ, था, ये। उस वक्त वाकया हुआ था। इतनी जल्दी से इतनी चीजें हाइप नहीं बनती है। अब 24 घंटे के हाइप अंदर बनेगी फिर होगा, यार यही होता है। आप हाइप बनेगी फिर अमेरिका होगा। है क्या? कौन सा मुल्क है जहाँ होते साथ ही गिरफ्तार हो जाता है 2 घंटे में, 3 घंटे में? अब इस तरह की बातें नहीं करें। देखिए 24 घंटे में ये भी गिरफ्तार होगा, लेकिन मुझे उसका भी कोई यकीन नहीं है कि उसके बाद वाकई करार उसको सजा दी जाएगी, लेकिन गिरफ्तार होगा। और उसकी वजह क्या है? मीडिया। ये मीडिया है, सोशल मीडिया, इसकी वजह से गिरफ्तार होगा। कोई असर रसूख नहीं है, वरना पहले तो ऐसे कई वाकयात हो जाते थे, पता भी नहीं लगता था, खबर भी नहीं आती थी बाहर। सही बात। बहुत शुक्रिया जी, कम से बहुत कम आती शुक्रिया तो है। प्रोग्राम के। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, नवनीत मंसूर साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में भी हमने कोशिश की समाजी हवाले से लाजमी इस तरह खबरें शामिल करें, जो जुल्म सितम किस तरह खबरें सामने आती हैं उसको हाईलाइट भी करें, न सिर्फ उससे बात करें, तज़किया भी लें, और आप लोगों से भी कहेंगे इस तरह के वाक़यात के हवाले से ज़रूर आवाज़ बुलंद किया कीजिए। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दी इजाज़त, के बाद।